Hello everyone. Today I am going to start your second chapter of Management Accounting, study of financial statement of SY BCom Sem 3. I divided this introductory lecture into two parts. In first part I discussed the format of vertical balance sheet. I am Professor Zakira Matwankar from Sant Gadge Maharaj College of Commerce and Economics. I am Assistant Professor in Accountancy Department. First I am starting with the introduction. Introduction of financial statement. Financial statement is also called a financial report or compilation of balances of different accounts arranged in an effective meaningful order called the balance sheet and profit and loss account. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमारी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस इज कॉल्ड ऑल्सो इनकम स्टेटमेंट, सो दैट द इंफॉर्मेशन कंटेन देयरिन कैन बी इजीली अंडरस्टूड, readily interpreted and used as basis for the business decision by the user of accounting information, and the financial statement are studied and used extensively by the various parties. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा या इनकम स्टेटमेंट रहेगी, ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ. ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरह से मेंटेन किया जाता है ताकि जो उसके यूजर्स हैं उसको सही से समझ सके, उसको इंटरप्रेट कर सके कि बिजनेस और बिजनेस डिसीजन में इसकी हेल्प हो सकती है कि किस तरह से हम बिजनेस डिसीजन ले. Now, the second point is financial statement definition. The term financial statement is used in modern accounting refer to two statement of position statement reflecting the assets, liabilities and capital of a business entity on a particular date called the balance sheet and other called the profit and loss account, showing the result of business operation during a given period. Sometimes profit and loss account may also include separate section showed the appropriation of profit. Now this is the definition of the financial statement. This definition is known about the balance sheet and profit and loss account and the second section of the profit and loss account. Now how to prepare the financial statement? See, financial statement consists revenues account and balance sheet. Revenue account जो है refer to profit and loss account और income and expenditure account. Okay, so revenue account divided into, अगर हमारा manufacturing organization है so हमारा जो revenue account रहेगा वो 4 parts में divided रहेगा. See this manufacturing account, trading account, profit and loss account and profit and loss appropriation. सो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पता चलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट पता चलता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिटेन अर्निंग पता चलती है. सो दिस इज कॉल्ड द रेवेन्यू अकाउंट. ओके, सो this revenue statement and balance sheet we have to prepare for 1 year. Now the parties interested in the financial statement, जब कंपनी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, मतलब हमारा जो रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है, तो बहुत सारी पार्टीज इसमें इंटरेस्टेड होते हैं जिसे यूजर्स भी कहा जाता है. तो हु आर द यूजर्स ऑफ दिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? व्हाट आर द पार्टीज? हु आर द पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन द फॉर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव, मीन्स जो हमारे बिजनेस में काम करते हैं, मैनेजर्स जो है वो जो फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं. कोई भी डिसीजन लेने से पहले इन्हें पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. अगर हमारी कंपनी बिजनेस अच्छा कर रही है तो कौन सा डिसीजन इसके लिए बेटर होगा. सो इन्हें अपनी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है रेफर करनी पड़ती है ताकि कोई भी डिसीजन से पहले इन्हें पता चले कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हाउ वी आर डूइंग गुड और बैड. Who is the second user? Trade creditors. Creditors actually are the supplier who supply the goods to the company. ये क्रेडिटर्स जो है क्रेडिट बेसिस पे गुड्स देते हैं, लेकिन हमें कोई भी क्रेडिट बेसिस पे तब गुड्स देगा जब हमारा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा होगा. सो क्रेडिटर्स ऑल्सो वांट टू नो व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी. सो क्रेडिटर्स आर द सेकेंड यूजर. थर्ड
इज द शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर। शेयर होल्डर्स शेयर खरीदते हैं कंपनी के, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, लेकिन एज अ शेयर होल्डर और इन्वेस्टर हम भी इंटरेस्टेड होंगे कि भाई अगर कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है तो इसके शेयर खरीदें या इसमें इन्वेस्ट करें। इसके लिए शेयर होल्डर्स भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखकर ही शेयर खरीदते हैं या इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। नाउ द फोर्थ वन इज अ बैंकर। बैंक जो है हमको तभी लोन देती है जब हम उसको रीपे करने की पोजीशन रखते हैं। सो अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो ही वो लोन रीपे कर सकते हैं। तो बैंकर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल पोजीशन के लिए कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है तो ही हम इनको लोन देंगे, वरना नहीं। नेक्स्ट इज laborers who are the workers, who are the employee in the organization, who is doing who convert the रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स। ये जो काम करते हैं लेबरर्स हमारी कंपनी में, एक्चुअली ये भी जानना चाहेंगे कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की, ताकि उनको सैलरी टाइम पे मिले, उनको बोनस टाइम पे मिले, उनका किसी तरह से पेमेंट ना रुके। सो लेबर इज ऑल्सो द वन ऑफ देम हु आर वेरी इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल statement. And the last one is consumer and the society. Consumer are the final user of the product. So consumers जो है वो भी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल पोजीशन, बिकॉज अगर कंपनी अच्छी होगी तो वो उसके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, किसी तरह से फ्रॉड ना हो उनके साथ। सो दीज आर द कंज्यूमर एंड द सोसाइटी हु आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। सो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी बनाया जाता है तो पूरी तरह से हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाती है कंपनी की कि कंपनी बिजनेस कैसे कर रही है, वेदर दे आर इन अ गुड पोजीशन और इन अ बैड पोजीशन, बिकॉज दीज आर द पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ द नेक्स्ट इज कंपनी शेयर कैपिटल। लिमिटेड कंपनीज जो होती है, जो हमारे ओनर्स होते हैं, वो शेयर कैपिटल को डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, लेकिन पहले जब वो रजिस्टर करते हैं कंपनी, सो अकॉर्डिंग टू दैट उनको कुछ ऑथोरिटी दी जाती है रजिस्टर के टाइम पे कि भाई आप इतना ही कैपिटल इशू कर सकते हो। तो वो जो अथॉरिटी दी जाती है उसे कहते हैं ऑथोराइज कैपिटल। देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर 5 CR लिखा है, मतलब 5 करोड़। सपोज कंपनी को अथॉरिटी है कि वो 5 CR के शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है। सो कंपनी का जो ऑथोराइज कैपिटल है उसे कहेंगे that is your 5 CR, okay, so that is called authorized capital। इनको इतनी authority है। Now this capital are divided into 2 parts. First is issued capital and second is अनइशूड कैपिटल। जैसे अगर कंपनी को अथॉरिटी है कि वो 5 CR इशू कर सके, लेकिन अगर कंपनी को अभी इतना रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतने कैपिटल की पैसे की जरूरत नहीं है, तो वो उसका कुछ पार्ट इशू करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पर 3 CR, और जो इशू नहीं किया अभी तक के शेयर्स जिनको इतनी पैसे की जरूरत नहीं है, तो 2 CR उन्होंने इशू नहीं किया, तो फिलहाल वो लोग जो है इशू करेंगे ओनली इशूड कैपिटल आर 3 CR। इशूड कैपिटल also divided into 2 parts. First, subscribe capital and unsubscribe capital। जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, जैसे 3 CR के शेयर इशू करती है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनके शेयर्स बिके, मतलब शेयर होल्डर खरीदे भी और ना खरीदे। अगर शेयर होल्डर शेयर्स खरीदते हैं दैट इज कॉल्ड अ सब्सक्राइब कैपिटल, और जो शेयर्स नहीं खरीदे जाते हैं उसे अनसब्सक्राइब कैपिटल कहा जाता है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे सपोज किया है कि अगर 3 CRs में से अगर 2 CRs के शेयर्स पब्लिक खरीदती है तो दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल, और जो शेयर नहीं बिकते हैं सपोज 1 CR के, उसे अनसब्सक्राइब कैपिटल कहा जाता है। तो दैट इज called issued capital, okay। Now subscribed capital is divided into 3 parts. First, called up capital, second, uncalled capital, and third, reserve capital। Now first understood what is the called up capital। देखिए अगर हम बहुत सारे अगर शेयर खरीदते हैं शेयर होल्डर, तो शेयर महंगे भी हो सकते हैं, एक साथ इतना पैसा भरना पॉसिबल नहीं है, तो कंपनी उसको इंस्टॉलमेंट देती है शेयर होल्डर को कि आप जो है पहले इतना पैसा भरिए, इतना पैसा भरिए। जैसे अगर 1000 रुपीज़ का एक शेयर है, तो एप्लीकेशन के टाइम पर 250 का पैसा ले लिया। जब अलॉटमेंट करती है कंपनी कि आपके नाम पे शेयर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो माइट भी 250 तब ले लें।
फिर उस 500 अगर पे हो गया तो उसके बाद जब रिमेनिंग 500 है उसके माइट भी 2 पार्ट्स कर दे, पहला 200 और बाद में 300। तो उस तरह से कॉल किया जाता है, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। तो अगर कंपनी कॉल वाइज पैसा इंस्टॉलमेंट पर अगर पैसा मंगाती है तो उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। और अगर जिसका कॉल नहीं हुआ है, जितना पैसा बाकी है अभी तक के जिनका कॉल नहीं हुआ है, उसको अनकॉल्ड कैपिटल कहा जाता है। नाउ द रिजर्व कैपिटल माइट भी पॉसिबल है, माइट भी नहीं। रिजर्व कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस से डिफरेंट है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल एंड इट इज डिमांडेड व्हेन the liquidation of the company is necessary. So this is the reserve capital. Reserve capital reserve and surplus नहीं है, please be remember that. अगर कॉल किया कंपनी ने और शेयर होल्डर ने अगर उसका पैसा दिया तो उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल, अगर पूरा पेमेंट हो गया है तो। अगर पेमेंट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ एनी रीजन, सपोज शेयर होल्डर्स ने पेमेंट नहीं किया, तो उसको अनपेड कॉल कहा जाता है या कॉल इन एरियर्स कहा जाता है। तो this is the total structure of the share capital of the company. Now the next is what is a shares. As we know, share is a unit of a capital. shares जो है शेयर होल्डर्स खरीदते हैं, लेकिन shares we divided into 2 parts. One is equity shares and other is preference shares. Equity shares are also called ordinary shares or common shares. ओके, इक्विटी शेयर्स के जो डिविडेंड है वो फ्लक्चुएट होते हैं। सपोज इक्विटी शेयर्स जो हैं हमारे, वो इक्विटी शेयर्स जो होल्डर हैं, दे हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग, they have a right to take a decision, they participate into the decision in the board meeting. यहाँ पर मगर अगर सपोज बिकॉज ऑफ एनी रीजन कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो इन्हें डिविडेंड नहीं दिया जाता। मतलब अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो ये इनका जो है शेयर डिविडेंड बढ़ेगा, अगर नहीं तो कम होगा। सो इट्स ऑल डिपेंड कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रिस्क बेरर, ये बहुत रिस्की कैपिटल होता है। और यहाँ पर जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को मगर पूरे राइट्स होते हैं कि दे कैन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग और इन द डिसीजन मेकिंग। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं, दिस आर द डिफरेंट शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का एक फिक्स रेट डिसाइड किया जाता है कि इन्हें इतना डिविडेंड मिलेगा। सपोज अगर 1000 रुपीज़ का एक शेयर है तो उस पर 5% इनको अगर डिविडेंड देना है, इट विल फिक्स। अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो भी इनको 5% मिलेगा, अगर कंपनी लॉस कर रही है तो भी इनको 5% कंपनी को एनी हाउ देना पड़ेगा। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ऐसा नहीं है। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 parts. One is participating, other is non-participating. Participating मतलब सपोज अगर कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पे या अगर कंपनी ज़्यादा सरप्लस प्रॉफिट कमा रही है तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इनमें शेयर मिलता है और नॉन पार्टिसिपेटिंग को इसमें शेयर नहीं मिलता। Participating and non-participating shareholder also are called a redeemable preference shares. Redeemable preference shares means they can return their capital to the company. Suppose I am a preference shareholder. अगर मैं एक preference shareholder हूँ और कंपनी ने जब इशू किया है preference shareholder तो उसी टाइम अगर वो redeemable है तो कंपनी कह देती है कि भाई 5 years के बाद हम अपने शेयर वापस ले लेंगे और आपको अपना पैसा वापस दे देंगे। सो कंपनी यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा दे के वो शेयर्स वापस खरीद लेती हैं, जिसे कहते हैं रिडीमेबल। सो दैट इज कॉल्ड अ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बोथ शेयर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 parts, cumulative and non-cumulative. Now what is a cumulative preference shares? कम्युलेटिव मीन्स सपोज अगर कोई रीजन की वजह से या कंपनी अगर लॉस में जा रही है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं पे कर सकती तो वो ये राइट रखते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कि वो नेक्स्ट ईयर उनका डिविडेंड कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉन कम्युलेटिव को ये राइट नहीं होता। अगर करंट सिचुएशन में वो लोग अगर पेमेंट नहीं देते हैं या डिविडेंड नहीं देते हैं तो दे हैव टू बेयर देयर लॉस, नेक्स्ट ईयर उनको वो डिविडेंड नहीं मिलता है। So that is cumulative and non-cumulative preference shares in both the cases. Balance sheet, as we know, balance sheet is the list of balances in assets and liability or a net worth account. Okay. Balance sheets show the sources from which funds currently used to operate the business have been obtained. यानी अगर हमारा which is a liability and the owner's equity.
and the types of the property and property rights in which these funds are currently locked up. These both are the definition. इस definition से हमको पता चलता है कि बैलेंस शीट इज नथिंग बट असेट्स और लाइबिलिटी स्टेटमेंट है. लाइबिलिटी जो हमारे ओनर्स इक्विटी होती है, जो लाइबिलिटी होती है, ये पैसा कलेक्ट किया जाता है, कंपनी कलेक्ट करती है और इसी से हमारे असेट्स बनाती है. ओके, दैट्स व्हाई वी हैव टू टैली आवर लाइबिलिटी एंड असेट्स. फंक्शंस क्या है बैलेंस शीट के? देयर आर 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस. फर्स्ट, इट गिव द समरी ऑफ द फर्म असेट्स एंड लाइबिलिटी. बैलेंस शीट से हमको पता चलता है कि व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कितनी कंपनी की लाइबिलिटीज है, कितनी असेट्स है. सेकेंड है, इट मेजर द फर्म्स लिक्विडिटी. लिक्विडिटी पोजीशन पता चलती है हमको फर्म की. एंड थर्ड वन, इट इज अ मेजर ऑफ फर्म सॉल्वेंसी, मतलब सॉल्वेंसी पोजीशंस. नाउ एज वी नो, हमने FY BCom में किया है फॉर्मेट्स ऑफ बैलेंस शीट. ऑलरेडी वी डन विच इज अ T फॉर्मेट वी डन, जिसे कहते हैं कन्वेंशनल फॉर्मेट. लेकिन अब जो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करने वाले हैं दैट इज अ वर्टिकल फॉर्मेट. पहले मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज द कन्वेंशनल फॉर्मेट विच इज अ रिविजन फॉर यू. Conventional format or a customary form of the balance sheet is also called a horizontal or T form. It shows the asset, which is a debit balance on the right hand side, and liabilities in the credit balance or the owner's equity on the left hand side. C. आपको दिख रहा होगा, ये आपने पहले भी कर चुके हैं. Liabilities, which is divided into share capital, reserve and surplus, long term borrowings and current liability. और asset side हमारे fixed assets होते हैं, tangible, intangible assets, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स एंड फिक्टिशियस असेट. सो ये FY BCom में हमने इजीली किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ T फॉर्म. ठीक है, ये सब हमें पता है. बट नाउ हाउ टू कन्वर्ट दिस हॉरिजॉन्टल फॉर्म इनटू द वर्टिकल फॉर्म. मैं इसका कंपैरिजन करके आपको इजीली बताती हूँ, हाउ टू कंपेयर द हॉरिजॉन्टल इनटू वर्टिकल फॉर्मेट. नाउ दिस इज द प्रीवियस वन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है. अब यहाँ देखिए क्या चेंजेस होंगे वर्टिकल फॉर्म में. सी द एरो, यहाँ पर जो हमारा फिक्टिशियस असेट है वो कहाँ जाने वाला है? रिजर्व एंड सरप्लस के पास लेस होगा. ठीक है, एंड हमारी जो करंट लाइबिलिटी है वो ट्रांसफर होने वाली है करंट एसेट से, वो यहाँ पर लेस हो जाएगी. ठीक है, सो यहाँ से फिक्स्ड असेट्स लेस होगा रिजर्व एंड सरप्लस से, और करंट लाइबिलिटी किससे लेस होगी? करंट असेट से. दिस इज द ओनली डिफरेंस. बस हम इसको वर्टिकल फॉर्मेट में कर देंगे. पहले मैं आपको T फॉर्म में ही बताती हूँ इसको. सी, मेरा जो लाइबिलिटी साइड है, पहला पार्ट आएगा इसका, दैट इज अ शेयर होल्डर फंड विच इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लेस फिक्टिशियस एसेट, जब इसका कैलकुलेशन आउटर कॉलम में. एंड द सेकेंड पार्ट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड. देखिए यहाँ से करंट लाइबिलिटीज चली गई है, एम आई राइट, और यहाँ पर क्या आ गया है? फिक्टिशियस एसेट्स. नाउ कमिंग टू द असेट साइड, फर्स्ट पार्ट वैसे ही रहेगा हमारा, फिक्स एसेट, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल. सेकेंड पार्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. लेकिन जब करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस होगा तो उसको सी पार्ट को कहेंगे वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी हमको देगा वर्किंग कैपिटल. सो हमारा एसेट पार्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल. ये 3 पार्ट्स है मेरा होगा एसेट साइड. नाउ दिस इज द हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में मैंने आपको करके दिखाया. इसको अब हम जब वर्टिकल फॉर्मेट में करेंगे, so first we have to know what is the need for the vertical format. The horizontal form, which is traditional in nature, which is suitable to owner, but for analysis, मतलब अगर management जब analyze करता है financial analysis, तो it is very important कि we have to convert this horizontal format into the vertical format. It is also suitable for the ratio analysis. So यहाँ पर जो वर्टिकल फॉर्मेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंट्रोड्यूस किया गया है बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट व्हेन दे आर डूइंग द एनालिसिस फॉर द फ्यूचर पर्पस, कि हमें पता चलता है कि कंपनी बेटर पोजीशन में है, लॉस में है या प्रॉफिट में है. सो दिस इज बिकॉज द कंपनी ट्रांसफर देयर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट इनटू द वर्टिकल फॉर्मेट. नाउ सी द वर्टिकल फॉर्मेट. मोस्टली वर्टिकल फॉर्मेट्स के अमाउंट के 3 कॉलम होते हैं. फर्स्ट पार्ट है देखिए आपका लाइबिलिटी साइड, जिसे कहते हैं इक्विटीज एंड लाइबिलिटी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सोर्सेज ऑफ फंड. यहाँ पर ये डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट शेयर होल्डर फंड. शेयर होल्डर फंड्स में आते हैं आपके शेयर कैपिटल,
रिजर्व एंड सरप्लस, जैसे मैंने अभी आपको हॉरिजॉन्टल में बताया, लेस फिक्टिशियस एसेट। मगर वर्टिकल फॉर्मेट में देखिए इसको एक ही पेज में ऐसे 4 कॉलम बनाएंगे हम, पर्टिकुलर्स और 3 अमाउंट के कॉलम। यहाँ पर शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लेस फिक्टिशियस एसेट, एंड थर्ड पार्ट इज मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट इफ एनी, देन वी हैव टू राइट। तो हमारा फर्स्ट लाइबिलिटी का पार्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर फंड। नाउ द सेकेंड इज लोन फंड्स, जिसमें सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन आ जाते हैं। तो ये मेरा लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। नाउ असेट, असेट में फर्स्ट पार्ट आता है फिक्स असेट्स विच इज कॉल्ड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट। वी हैव टू राइट बोथ इन द आउटर कॉलम। सेकेंड पार्ट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड पार्ट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जिसमें मैंने आपको बताया करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटी हम माइनस करते हैं। नाउ करंट असेट्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, क्विक असेट्स, लोन एंड एडवांसेस गिवन, मगर लोन अगर कम ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है किसी को तो, एंड नॉन क्विक असेट। क्विक असेट वो असेट्स होते हैं जिसको हमें क्विकली उसको लिक्विफाइड कर सकते हैं। लिक्विफाइड करना मतलब फॉरेन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नॉन क्विक असेट को फॉरेन कैश में क्विक कन्वर्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली करंट लाइबिलिटीज ऑल्सो, क्विक लाइबिलिटीज हमको कैश में फॉरेन पेमेंट करनी पड़ती है, देन शॉर्ट टर्म प्रोविजन एंड नॉन क्विक लाइबिलिटीज। सो इस तरह से ये टोटल करंट असेट में से टोटल करंट लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, वर्किंग कैपिटल। सो असेट साइड देखिए यहाँ 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल। तो मेरा आ जाता है टोटल वैल्यू सेम, दैट इज कॉल्ड असेट्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो यहाँ पर आपका ये जो लाइबिलिटी है ये टैली होगा आपके असेट से। Always remember this share capital, reserve and surplus, fictitious asset, this is only the head, ये आपका फॉर्मेट है। लेकिन इस शेयर कैपिटल के भी पार्ट्स होते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में कौन से रिजर्व्स आएंगे ये मैं आपको ब्रीफली अभी बताती हूँ। सी, ये सेम फॉर्मेट रहेगा जिस इसके अंदर देखिए आप शेयर होल्डर फंड्स में पहला पार्ट आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमारे अभी मैंने बताया आपको 2 टाइप्स के शेयर्स होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अनपेड कॉल्स जिनका पैसा नहीं मिला है, वी हैव टू डिडक्ट दिस। वी हैव टू ऐड फॉरफिटेड शेयर्स, अगर कंपनी ने जो शेयर्स वापस ले लिए हैं उसे हमें वापस कर लेना है। सो दैट इज माय शेयर होल्डर फंड। इसमें मुझे ऐड करना है रिजर्व एंड सरप्लस, बी पार्ट। जितने भी रिजर्व्स हैं वी हैव टू राइट इट। हमारा जो प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट, वो भी यहाँ पर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, दैट इज अ सेकेंड पार्ट। एंड नाउ थर्ड, वी हैव टू लेस फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट में हमारा नेट लॉस आता है, जितने भी हमारे जो लॉसेस होते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, यहाँ पर से ये लेस हो जाएंगे। सो फर्स्ट पार्ट इज शेयर होल्डर फंड का शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लेस फिक्टिशियस असेट, एंड सी मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट इफ एनी, अगर रहा तो। सो दैट इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइबिलिटी। ये जो मैंने आपको लास्ट प्रीवियस फॉर्मेट बताया उसमें सिर्फ हेड्स थे, मगर इसके अंदर जो है और भी हमारे बहुत टाइप के रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, बहुत टाइप के फिक्टिशियस असेट्स होते हैं। तो प्लीज गो थ्रू इट प्रॉपरली वन बाय वन। देन सेकेंड पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, लोन फंड्स, जिसमें आते हैं हमारे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। जो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं मतलब इसके अगेंस्ट में कुछ सिक्योरिटी रखी जाती है, तो दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड लोन, सेम चीज है। और जिसमें अगर सिक्योरिटी नहीं होती है उसको अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। वी हैव टू राइट इन इनर कॉलम फर्स्ट एंड देन कैलकुलेटेड इन द आउटर कॉलम। सो इस तरह से मेरा लाइबिलिटी साइड का सेम पार्ट है, बस मैंने इसके सेम फॉर्मेट है, बस मैंने इसके अंदर जो है क्या क्या आएगा हेड्स के अंदर मैंने आपको ब्रीफली दिया है। कंटिन्यू करेंगे सेम आपका असेट साइड सी, फिक्स असेट विच कंटेन टेंजिबल असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, वी डन, व्हीकल्स, लाइफ स्टॉक। देन we have intangible asset which we can't see and which we can't touch, that is goodwill, patents, copyrights। तो ये फिक्स असेट्स हो गए मेरे। देखिए फर्स्ट कॉलम में इनको मैंने ऐड किया, सेकेंड कॉलम में लिखा, इसी तरह से टेंजिबल, एंड देन आउटर कॉलम में वी हैव टू राइट टोटल वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द असेट इज इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये सब हमारे इन्वेस्टमेंट है, हमको इसको ऐड करके अगेन थर्ड कॉलम में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट इज माई फिक्स असेट, second part is my long term investment, and third is my working capital, as we know current asset minus
करंट लाइबिलिटी। अब करंट असेट्स के पार्ट्स में मैंने आपको बताए थे, क्विक असेट्स है जिसे हम इजीली लिक्विफाइड कर सकते हैं, जिसे लिक्विड असेट कहा जाता है, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ठीक है। देन लोन एंड एडवांसेस, एंड थर्ड इज अदर करंट असेट्स जिसे नॉन लिक्विड एसेट कहते हैं, जो फॉरेन कैश में कन्वर्ट नहीं होते, जैसे इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स, एडवांस फॉर गुड। तो ये मेरा टोटल करंट असेट हो गया, ठीक है, ये 3 पार्ट। नाउ करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी भी देखिए यहाँ पर 3 पार्ट्स में है। क्विक लाइबिलिटी विच वी हैव टू पे इमीडिएटली इन अ लिक्विड फॉर्म, मतलब कैश फॉर्म में, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, एडवांस रिसीव, एक्सपेंस पेएबल, एक्रूड इंटरेस्ट, तो ये हमारी सब क्विक लाइबिलिटीज हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन, अनक्लेम डिविडेंड, ये हमको सबको पहले फर्स्ट कॉलम में ऐड कैलकुलेट करके सेकंड कॉलम में लिखना है। एंड देन अदर लाइबिलिटी विच इज अ नॉन लिक्विड लाइबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड इनकम रिसीव। सो ये तीनों लाइबिलिटीज को हम करंट असेट से माइनस करेंगे एंड देन वी हैव टू राइट अ वर्किंग कैपिटल। सो हमारी जो यहाँ पर असेट साइड है, पहला पार्ट आ जाएगा फिक्स असेट, सेकंड पार्ट आ जाएगा इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड पार्ट इज माय वर्किंग कैपिटल। ये तीनों से मिलकर मेरा टोटल करंट असेट टोटल असेट साइड आएगा। सो इन दिस वे योर liability will be equal to your total asset. If you have any problem in the pro forma, please write in a comment box. First I gave you the pro forma which have a heads. First learn that properly and then go through one by one के which head, suppose fixed asset में, tangible asset में कौन से क्या क्या आएगा, intangible assets में क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट्स में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, करंट असेट्स में क्या आएगा, करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा। सो इन बाय दिस वे you go through in a brief format also. This is very easy. Please concentrate it properly. If you have any doubt, please write in a comment box. Thank you so much.